Yes, sir. Okay. Third class. Yes, sir. And Earth has entered physics, no? Yes, sir. Okay. So how you are finding the new class? It's more difficult than the previous class? No, Sir, sir, always it's like easy. So it is easy. It's a good. That means you people are studying quite well, so everything looks easy. You study here, everything will look easy. So who has a question now? We can start right now. Anybody Sir, have? Yes. like can we convert a liquid like solid to gas directly? Yes, there are many substances. They don't go through liquid state. That depends on the. There are two variables: pressure, temperature. So depending on that, some of these solids, they simply go to the liquid gas stage directly. Yeah, it's possible. I have another question. So how did this question come in your mind? No, sir, we are studying like now matter in science. That's why. Matter in? Matter, sir, in science. Sorry, I'm not getting matter. The matter and the Yes, sir. matter in science. And do you know any liquid? Most of the liquids, when you decrease the temperature, the density increases. What do you mean by density? Sir, density like mm, Now, what is the meaning of density? density like the weight. Yes, sir. Density is like the how much mass is packed into the given volume. Yes, very correct. So, suppose if there is a 10 grams of something in 1 liter of that, 1 liter is the unit of volume, so it will be called 10, 10 grams. Suppose it is in 1 liter, then the density will be 10. So, most of the liquids, when you decrease the temperature, the density increases. But do you know one liquid which the density decreases? Do you know any liquid? No, sir. Hello? What is the name of Aryan's brother? What is your name? Rudra. Yes? Rudra. Lubra. Sir Rudra. Rudra. It's okay, Rudra. So, Rudra, you know this? Is there Yes, any liquid you know that whose density, instead of increasing, it decreases? Solids also, all the solids, when you decrease the temperature, the density increases. There is one liquid which behaves very peculiarly. Do you know that liquid is water? Till when you suppose the temperature of water is 50 degrees and you decrease, the density will keep on decreasing. But at 4 degrees centigrade, if you decrease further than that, the density will start decreasing actually. It's very interesting.
Yes, yes, Earth. You can ask the I have question. a question. Yes, what is that? That is a tricky question in mathematics. In mathematics. Yes, sir. No, what is that question? Let us see if we can answer without the blackboard. We can answer a mathematics question. No, sir, it is like easy, but you have to like in the question is in Hindi. I will say 10 plus 10 का Hmm. आधा. 10 + 10 का आधा कितना होता है? Yes, sir. भाई, Second. 10 + 10 का आधा 10 होता है कि नहीं? No, sir. देन कितना होता है? 15. अच्छा, 10 + 10 का आधा. अच्छा, ओके ओके. The ka meaning in English is off, and according to board math, we do off first. Then 10 plus 10 of 1 by 2. 10 of 1 by 2 equal to 5, and 10 plus 5 equal to 15. I agree with you. It's a very tricky question. Good one. What does Rudra say? Rudra, 10 + 10 का आधा कितना होता है? Ten. How much? 10. 18. No, sir, 10. You're saying 15 or 10? 10. Yeah, but you see what Earth is saying that it is 15. So Earth, can you explain to him why it is 15? And so the board math. Sir, we have just started board mass. So, Then Okay. there is a rule in board math that board math equal to bracket of division, multiplication, addition, and subtraction. So we do of then 10 plus 10 plus 10 का आधा equal to कि का meaning in English is of. Then first we'll do of, then 10 of 1 by 2 equal to 5, and then 10 plus 5 equal to 15. So did you get it, Rudra? yes. Yes, So sir. now Ankur has joined. Hello, Ankur. How are you? Hello, Ankur. Good morning, sir. Good. Yeah. Good evening. Acha, why did you say good morning? Is it morning in your place now? Hello. First, in when you meet someone, first in a day, you should say good morning. Oh no, it's not like that. If it is evening, you cannot say good morning. Good morning means what? Basically, that wish that you have a very nice morning. So in the evening, you cannot say good morning. Good evening, sir. But what is the custom? It is a custom actually. But suppose in the evening, suppose it is 9 o'clock. It's night. So you should not say good night because you should say still good evening. Good night you should say only while parting from your friend. When you go away from him, then that time you should say good night because you are wishing that you have a very good night. Okay, so you have a question. What is that question? No, sir. No any question. No questions. All questions answered. Who has a question now? Hello? Hello, who has a question? Or will I start asking question?
Yes, sir. Okay. So, So I have a question. acha, okay. So tell what is your question? Sir, what are the what are the how it classification helpful to us? Classification of Classification. what? Classification of what? Yes. Any classification, how it is helpful? No, but when you classify certain things. So which thing are you talking about? On the basis of conduction of heat and electricity. No, we have, say, in case of a heat, we have something which is called which is conducts heats. Then there are materials which conduct heat. There are materials which don't conduct conduct very badly. So these kinds, you have to always classify. Then only we know that what is how the change, how some materials are different from other materials. Like say in So electricity, on the like say basis of the hardness. so hardness also same thing. Now something can be very hard, something can be soft. So based on that you can. So there is a way to measure also hardness. So on that basis it is classified. So in case of electricity, there are materials which are good conductors of electricity, and there are materials which are not good conductors of electricity. We call them insulators. Silver. Most of the substances are in between. Neither they are 100% conductor nor 100% insulator. Somewhere in between. But it's the materials like copper they are very, very good conductors. Yeah. Silver. Yes, silver also. Silver, gold, all the most of them are. All the Metals metals. are very good conductors of electricity. So, hello. Yes. Yes, sir. You are asking. So my question now is, I would like to ask you questions about the Earth itself. So, I, are you aware that the Earth is not a static thing? Earth is a moving thing. It is rotating, then it is revolving. Yes, Then the sir. sun, yeah, the sun itself is Sir, it's rotating. The speed almost is about, I think, 1600 kilometers. Uh, yes, 1600 kilometers there. And if I remember exactly, and then it is moving around the sun, which is, what is the speed? Do you know? Does someone know what is the speed of that? The Earth's speed changes, but roughly average speed is how much? When it is going around the sun, who can say? hundred 70 km/h. How much? 1617 How much? kilometer. That is rotation, and then moving around the sun. Kilometer per hour.
Sir, can I say? Yes, how much? Sir, Earth speed around the Sun in revolution is 29.8 kilometer per second, Mm-hmm. and one lakh 7,000 kilometer per hour, and in rotation it is 1,670 kilometer per hour. Yes. Ankur, did you get this one? See, that is roughly about 1 lakh kilometers per hour Yes, sir. Yes, going sir. around the sun. Yeah. But the speed keeps on changing. A little bit change is there, but this is the average speed. And when we say rotation, so rotation is 1600 kilometers per hour. तो आप जो जहाँ पर खड़े हैं अभी यू आर मूविंग राइट नाउ विथ ए स्पीड ऑफ almost you are rotating also and you are going around the sun also. And the sun itself is going Sir, why you don't around the galaxy. So we are in a Milky Way system. The sun itself is going around the galaxy. Do you know the speed of that? Sun is also moving, sir. Yes, sun is also going around the galaxy. Sir, So already after the sun is formed, it has already made two revolutions till now. Only two. Such a huge, we are at a huge distance from the center of the Milky Way. Does someone know what is the speed of the sun going around the center of the 8 Milky lakh Way? 28,000. Much? sir, 8 lakh 220 kilometer per second. 200 20 kilometer per second. Sir, 230. to 30. 20. 30. Okay, it is roughly around that. 25. 25 kilometer. No, sir, 225 kilometer. 225, roughly let us say. So we are moving per second 225 kilometer. पर हम लोग को तो पता ही नहीं पड़ता है आपको पता पड़ रहा है कि आप मूव कर रहे हैं अभी No, sir. अच्छा how come are you feeling that you are moving No, sir. how interesting it is हम लोग इतना स्पीड से जा रहे हैं so even when you go in a plane also you'll find that you don't feel that it Yes, is sir. I moving got a reason behind it. Sir, I have a question. what is that question Sir, is it true that all physical changes are reversible? oh No. Explain. let me try to remember any physical no most of the physical changes are reversible but I want to try to remember is there any change which cannot be reversed अभी तक तो याद नहीं आ रहा है Sir, sir. हाँ What was the question? he is asking that अच्छा by the way what is the meaning of physical change So physical change is it change which can be Reversed. like cut doing physical change mean that can be reversible like changing of matter. No, no. Sublimation is also the process of changing of matter. It can't be reversible. what is sublimation Change to get change gases hello form. So it is Yes, sir. it is false that Ankur is saying because in our book also it is given that change of a state can be physical. yeah change of state is a physical that is a physical change Yes, sir.
So I have one more question. What is that? Sir, so how you will know if a chemical change has happened? By its properties. And what are the properties? No, no. How we will know the chemical change has happened? Yes, sir. So in a chemical change, what happens that there are two different materials, they combine together and form a different kind of compound. So if it is a different kind of compound, that means a chemical change has occurred. So let me ask a few questions first of all. What is the difference between atom and molecule? ये आप लोग को Sir, a क्लास smallest 5 में भी है? Yes, what is? a Yes, smallest is known as atom, and the group of atom are known as molecule. smallest. What is this? What did you say once Sir, again? can No, let him come. What did you say, Ankur? What is the small? What did you say? The smallest? The smallest particle of any substance that can't be broken further is known as atom, and the group Huh? of atom is known as molecule. No, the smallest particle of a substance. What do you mean by substance? Any matter, No, we call the smallest particle of an element. element, When we talk about, yes, it's substance is, it could be an element, could be a compound. So we call substance that. But we are talking now of an atom. So atom is the smallest particle of that element. Yes, then. And what is a molecule? group of atoms. No, 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 no. आपकी किताब में ये लिखा है group of atoms. See, a molecule, a group of atoms means there more than one atom will be group of atoms. But in case of, let us say, argon, the molecule formula is a single atom only, not a combination. So what is the difference between atom and molecule? The smallest particle of a substance. Of a substance, you must always add which can freely exist. In atom, like say oxygen, if you suppose you go in the air and catch one oxygen particle, you will find there will be two atoms joined together. You won't find a single oxygen atom anywhere. So a molecule of oxygen always contains two atoms of oxygen. A molecule of hydrogen also contains two atoms of hydrogen. But say argon, neon, only one atom. And there are some like say ozone, there will be three atoms of oxygen. So the molecular formula will be that there are three atoms. So with the difference between atom and molecule is that atom is the smallest particle of an element which has the same property of the element. But the molecule is the smallest particle which can freely exist. अब हवा में खोजने जाएंगे या कहीं पर खोजने जाएंगे तो मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट फ्रीली, उसको कहते हैं मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, उसमें जब भी पकड़िएगा आप एक तो ऑक्सीजन को, उसमें दो एटम एक साथ चिपके रहेंगे. So whenever we write a chemical reaction, we write between molecules, not between atoms.
बिकॉज फ्रीली अवेलेबल जो है वो तो मॉलिक्यूल है। तो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे अभी। You must be doing balancing reactions, particularly Ankur must be doing it. Earth and Rudra. Rudra, are you doing chemical reaction? Sir, no. No. So that is the difference between atom and molecule. Yeah, Earth is asking a question. Yes, yes, sir. Sir, how explain how it is both physical and chemical change in burning candle? Sir, may I answer? Yeah, please. Yes. Sir, first of all, candle have both chemical and physical change Hmm. Yes. because if we burn the candle, there is some vaporized particle remains from that is chemical change. But sir, what we say, moon, Hmm. candle. When Hmm. candle when candle burns down, सर वो जलने के बाद जो बच जाता है उसको हम लोग वापस से कैंडल बना सकते हैं। नहीं, केमिकल नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो तो उसमें केमिकल रिएक्शन भी हो गया है। सर तो वो जो भाप बन के उड़ा वो ना केमिकल रिएक्शन हुआ, और जो फिजिकल रिएक्शन हुआ जो वो कैंडल पिघल गया वापस, उसको हम लोग वापस से कैंडल का फॉर्म दे सकते हैं। कैसे देंगे? कुछ तो ऑक्सीजन मिलकर के दूसरा कंपाउंड बन गया है। उसको वापस से मेल्ट करके कंटेनर में रख देंगे। हाँ, पर जो जो निकल गया है, जो केमिकल रिएक्शन करके ऑक्सीजन से केमिकल रिएक्शन करके निकल गया है, उसका क्या होगा? उसको कैसे वापस लाएंगे? सर तो वो केमिकल चेंज। Well, that is what Earth is asking. That are you satisfied, Earth? Yes, sir. So, yes, Himanshu ji. कहिए पंकज जी, क्या हाल चाल है? हाँ हिमांशु जी, वेलकम। बोलिए ना। धन्यवाद। तो और बताइए। आज आप कुछ लेक्चर देने वाले थे ना? नहीं, हम तो बोले थे कि सवाल का जवाब देंगे एआई के ऊपर, अगर किसी को पूछना है तो। अच्छा, पूछते हैं बच्चे लोगों से। पर मेरे विचार से यदि किसी समय यदि आप इस तरह करते कि अब सवाल पूछने के लिए भी तो कुछ जानना जरूरी है, तो बच्चे सब तो अभी जानते नहीं होंगे। पर अभी आप लोगों के पास क्या क्वेश्चन है, हिमांशु जी से पूछ सकते हैं एआई के बारे में। कौन पूछना चाहता है? हेलो हेलो, अंकुर, you want to ask artificial intelligence to Himanshu ji? He is an expert in artificial intelligence. एक्सपर्ट नहीं हूँ, थोड़ा आता है मुझे। हाँ हाँ, हम लोगों से तो 1000 गुना आता ही है आपको अभी। ऐसा नहीं। नहीं, बल्कि आप ही मेरे विचार से माने इन लोगों को कैसे हेल्पफुल हो सकता है, तो वो यदि बता दें तो शायद अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लोग पूछने से कतरा रहे हैं। मत कतराओ, कुछ भी पूछ लो, जैसे जो भी पूछना है। क्योंकि बिना भूख लगे खाना खिलाना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है? और वो भी खाना ऐसा आर्टिफिशियल जैसा। क्या बोल रहे थे? How the domains of AI works?
हाउ द डोमेन्स ऑफ, आप हिंदी में भी पूछ AI सकते हो, वर्क, डोंट वरी। AI के डोमेन किस प्रकार काम करते हैं? एआई होता क्या है पता है क्या? पहले एआई क्या है? एआई क्या है, आप क्या समझते हैं एआई को? बताइए, कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, तो अपने घर का खेती है, कोई बात नहीं, कोई यहाँ एग्जाम थोड़ी चल रहा है। ये जानना मेरे लिए जरूरी, तब मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगा अच्छे से। याद है डॉक्टर सर पूछता है ना, Yeah, AI is AI stands for artificial intelligence. It is a technology that helps us that helps computer and machine think, learn, and make decisions like humans. ओके, ये तो इंग्लिश में था, मुझे थोड़ी इंग्लिश कम आती है। सर अब आप मुझे इसको हिंदी में समझाइए, अगर आपको आपके छोटे भाई को समझाना होगा तो आप AI का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर और मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने में मदद करती है। अच्छा, आप ये बताइए, आप क्या चीज को देख करके जवाब दे रहे हैं हमें? मतलब सर, आप कुछ देख करके जवाब दे रहे हैं या अपने मन से ऐसा जवाब दे रहे हैं? AI का इंग्लिश में तो हम देख के अपने से बोले, लेकिन हिंदी में उतना नहीं आता था। हाँ हाँ हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि देखिए, हमको पता है इंडिया में जैसे पढ़ाई कराया जाता है, शायद मैं उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ आपकी तरह, लेकिन मुझे लगता है कि चीजों को सिंपल समझना चाहिए। जिस भाषा में हम खाना खाते हैं उसी भाषा में हमें शब्दों को, मतलब चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उतनी ही आसान होनी चाहिए जितनी आसानी से मिठाई खाने में मजा आता है। ठीक है, अगर मजा नहीं आ रहा मिठाई खाने जैसा तो फिर वो डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आपने जो बताया वो बात, वो शब्द, वो सब कुछ सही था आपके हिसाब से, पर हर एक के लिए एआई का मतलब अलग होता है। यस, एग्जाम देने जाना हो तो यही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लेकिन एआई एक ऐसा, एआई का स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्यों है? क्योंकि सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही एक रियल इंटेलिजेंट है, लेकिन कोई चीज ह्यूमन बीइंग के थ्रू बनाया जाता है या कोई भी चीज को डिराइव किया जाता है किसी चीज से, तो उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। ठीक है, तो एआई बहुत ही बेसिक सा चीज है, आप रोज यूज करते हैं। आपके पास टीवी होगा तो टीवी में भी यूज होता है। ठीक है, तो एआई एक ऐसा चीज है जो कि डिसीजन मेकिंग में काम आता है। जैसे सिंपलेस्ट वे में समझा सकते हैं कि आप कौन से क्लास में हैं? तो क्लास 6। क्लास 6 में हैं, ओके। इसलिए मैंने पूछा कि मतलब वो पता होना चाहिए कि किस। तो हम आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं, छोटा मोटा बेसिक सा। आपको आपको पता है कार रोड पे चलती है, आजकल ऐसे भी कार हैं जिस कार में कोई ड्राइवर नहीं होता। ये सर टेस्ला। टेस्ला, ओके। सो टेस्ला जो है वो बिना ड्राइवर के कैसे चला सकती है? अरे ड्राइवर तो चाहिए ना। उसमें AI यूज होता है और सेंसर यूज होता है। जैसे ही कोई कार पास आती है तो वो बंद, ब्रेक लग जाते हैं या कार धीरे हो जाती है। ठीक है, धीरे हो जाएगी, लेकिन हो सकता है धीरे होते होते भी जाके ठोक दे, डिस्टेंस कम बचे तो, है ना? नहीं, तो उसके सेंसर इतने मजबूत होते हैं और ब्रेक जो मतलब थूकने नहीं देते, क्योंकि जब ऐसा होता है तब तो आदमी तब पूरा उसी पे निर्भर होता है। तो वो सब बातें हैं। तो ये देखिए, ब्रेक तो सभी गाड़ी में बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना? एरोप्लेन में भी स्ट्रांग होते हैं, बहुत कुछ चीजें बहुत सारे गाड़ियों में बहुत स्ट्रांग होते हैं, फिर भी एक्सीडेंट होता है ना? हाँ सर। होता है ना? तो उसमें भी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं ही। पर उसमें कैसी बात है कि उसके पास, मैं आपको इसलिए इस तरह समझा रहा हूं ताकि आप इजीली समझ सके। एआई क्या है, उसमें ब्रेक तो है, स्टीयरिंग भी है, सब कुछ है, जैसा
एक नॉर्मल कार। बाकी गाड़ियों में होती है, नॉर्मल गाड़ी में, हाँ। और अगर एक नॉर्मल गाड़ी में एक नॉर्मल अच्छा ड्राइवर बैठा हो, जो स्मार्ट ड्राइवर हो, बहुत साल से चला रहा हो, बहुत प्रैक्टिस वाला ड्राइवर हो, तो वो ड्राइवर की एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना। लेकिन जो ड्राइवर रफ चलाता हो, बहुत ही रूल को तोड़ता हो, कैसे भी चलाता हो, तो वो ड्राइवर के एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है ना। Yes, इन दोनों में एक चीज को बताता है कि वो जो भी ड्राइवर है उसका, चाहे इंसान चाहे मशीन, अगर वो सेंसेबल है, सोच सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, और उनके ऊपर भी अपनी आईक्यू लगा सकता है कि मुझे कहाँ ब्रेक लगानी है ताकि अगले गाड़ी के करीब आ जाऊं लेकिन उसको जाके ठोक ना दूं। अगर उसके करीब जाके ब्रेक लगाऊंगा तो ठुक जाएगा। तो कैलकुलेटिंग डिस्टेंस कि कितने डिस्टेंस पे मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, कितना मेरा कैलकुलेटिव, ये जो मापदंड है ना, ये बहुत आसान नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर पाता है आफ्टर ए लॉन्ग प्रैक्टिस विद द सेम कार, क्योंकि उसको पहले भी पता है, अच्छा मैं इतने दूर से ब्रेक लगाता हूं, तो उसके पास क्या है, डेटा है, कुछ डेटा है, जिस डेटा पॉइंट पे वो डिसाइड करता है कि अब मुझे ब्रेक कहां मारना है इस कंडीशन में, क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस है। ओके, यहाँ यहाँ ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ था, यहाँ यहाँ ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ था। ठीक है, जैसे आप चेस खेलते हैं, चेस नहीं सर। नहीं, ओके, चेस खेलते हुए देखें कभी किसी को? Yes सर। तो जो चेस खेलते हैं उनको नोटिस कीजिएगा कि वो लोग हर चाल जो चलते हैं, उस चाल में वो बड़ा अच्छा प्लेयर होता है जो बहुत सालों से चेस खेल रहा है। करेक्ट। तो वो क्योंकि वो इतनी बार खेला होता है कि उसके पास इतना ज्यादा उससे कॉम्बिनेशंस के डेटा इकट्ठे हो जाते हैं ना, कि उस डेटा के बेसिस पे वो डिसाइड कर पाता है, अच्छा इतने सारा डेटा आ रहा है, ये डेटा है, अगर मैं ऐसा चाल चलूंगा तो ऐसा होगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, बेस्ड ऑन द डेटा, वो जब हम डिराइव करते हैं ना, तो वो इंटेलिजेंट होता है। ओ देखो कितना इंटेलिजेंट है। आपने सुना होगा आपके माता पिताजी बेटे बोलते होंगे कि देखो तो पड़ोसी का बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट मीन्स कि ये बताना चाह रहे हैं कि देखो कितना स्मार्ट है वो। और वो कैसे स्मार्ट है, क्योंकि उसको सबका एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है। और यही एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस का डेटा इंफॉर्मेशन अगर हम किसी सिस्टम को दे कर देते हैं, तो सिस्टम भी उसी के बेसिस पे कैलकुलेट करके काम करता है। अगर हम गलत डेटा देंगे तो गलत काम करेगा, सही डेटा होगा तो सही काम करेगा। और इंसान के पास भी बहुत सारा स्मार्ट होते हैं लोग। कई अच्छे ड्राइवर भी कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्योंकि समटाइम्स सब चीज फैक्टर साथ नहीं देता, वहां का वेदर साथ नहीं दिया। आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं रोड पे, लेकिन सामने से आने वाली गाड़ी अच्छी नहीं है, तो वो आके ठोक देगी आपको, तो आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप देखेंगे, जो एक इंसान कर पाता है बहुत ही कुछ सेकंड्स में सारे कैलकुलेशन करके, फटाफट 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 डिसाइड करके ब्रेक लगा देता है या जो भी करता है गाड़ी को सही से चलाने के लिए, वही काम आज टेस्ला भी करती है। Yes सर। कैसे करती होगी सोच के देखिएगा जरा। इसको इसलिए मैंने ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बताया ताकि आप इन चीजों के कंपोनेंट को समझें, रेदर देन जस्ट इंग्लिश थ्योरी बोलने से नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में एआई कर क्या रहा है, एआई क्यों बोल रहे हैं उसको, देखिए, और एआई में ऐसा क्यों, और एआई कैसे कर पाता है। तो एआई ये सारा चीज कैसे कर पाता है, डेटा के बेसिस पे। और जो डेटा हम उसको देते हैं, अगर हम उसको डेटा दे एक वैसे रफ ड्राइवर का जो बहुत ही खतरनाक गाड़ी चलाता है, तो उसके पास डेटा वैसा होगा, वो उसी तरह से हिसाब करेगा और उसी तरह का ड्राइवर बनेगा और वो ठोकेगा। ठीक है। तो जितने भी एआई है ना, एआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड ऑन द मॉडल, और वो मॉडल जो है बेस्ड ऑन द डेटा, ट्रेनिंग डेटा, जैसा ट्रेनिंग डेटा देते उस तरह से। तो लोगों ने ये नोटिस किया कि यार जो काम हम इंसान भी कर, जैसे आप देखोगे, जैसे आप किसी आपके छोटे भाई होंगे या बहन होंगे या जो भी है, या हम लोग जैसे इंडस्ट्री में, तो हमारे पास जो नए लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनको क्या करते हैं, हम उनको इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो। और आप देखना 5-6 महीने के बाद वो बच्चे या वो स्टूडेंट या वो छोटा भाई जैसा आप करते वैसा वो भी करने लगता है।
क्योंकि हम उसको रेगुलरली फीड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कि भाई तुम ये करो, भाई ऐसे करो, अच्छा ऐसे नहीं होता, ऐसे करो। तो ये कर करके हमने क्या किया, एक मॉडल बना दिया, अच्छा ऐसे काम करते। तो उसी तरह हम ये सारी जानकारी एक कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं और वो इंफॉर्मेशन देते हैं और वो मॉडल बनाते हैं और वो मॉडल उसी डेटा के बेसिस पे काम करता है और फिर वो उस तरह से बिहेव करता है। और ये बिहेव करने के लिए इंसान का दिमाग तो बहुत फास्ट है, कंप्यूटर को उतना फास्ट रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत सारा पावर ब्रेन पीछे लगा होता है, जिसके लिए बहुत सारा सीपीयू और ये है। ठीक है, समझ में आई बात? एआई क्या है? किसी को कोई सवाल? आर्यन, आपको कोई सवाल है? आपने हाथ ऊपर किया है, सर वो कोई दूसरा सवाल था मलिक सर से। पूछिए पूछिए। अच्छा नहीं आर्यन, हिमांशु जी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहे हैं, तो आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आपको कोई प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? नो सर। हाँ, तो वो बता रहे हैं तो उसको थोड़ा सुन लीजिए, ओके सर। एंड देन वी विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम हिम। सो अभी तक जो हिमांशु जी ने कहा है कि इट इज ए डेटा बेस्ड थिंग, डेटा होता है उससे मॉडल बनता है। तो हाँ ठीक है हिमांशु जी, और आगे बढ़ सकते हैं आप। हाँ नहीं नहीं, वो क्या, बढ़ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, हाँ, सही पर मैं बात है। चाहता हूँ उतना ही इंफॉर्मेशन तो जितना डाइजेस्ट कर पाए और हम दोनों भी सही एक बात, ही सही बात। वेवलेंथ पे रहें, क्योंकि इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। ठीक है, देयर इज लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द मार्केट, पर हमें उतना ही समझना जो आप समझ सकते हो। इसीलिए मैंने कार का एग्जांपल लिया। आप रोज कार देखते हो, रोज ड्राइवर को देखते हो, तो इजीली आप समझ सकते हो। देखो, आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों का आने वाला टाइम बहुत ही टफ होने वाला है, दोनों सेंस में, प्लस और माइनस दोनों में। ठीक है, हम लोग, जैसे आपको पता होगा कि आपके दादाजी लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफी समय लगाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, है ना? याद है बैलगाड़ी? पता है आप लोगों को कुछ? यस सर। मतलब ऐसे समझो कि पहले फ्लाइट पे घूमना इतना आसान होता था क्या? बहुत महंगा था, बहुत सोच के था। अभी देखो फ्लाइट पे जाना इतना डिफिकल्ट है क्या? हर आम आदमी भी हवा में किसी वक्त भी फ्लाई कर सकता है ना? तो आने वाला जो टाइम है, जब आप हमारे एज पे आओगे, 18 साल और 20 साल, जब आप जॉब ढूंढने जाओगे, तब वो आपसे कोई बेसिक काम के लिए नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि बेसिक काम सारा कौन कर देगा? ये सारे एआई कर देंगे। जैसे पहले के समय में जो लोग ड्राइवर हुआ करते थे, चाहे बैलगाड़ी का ड्राइवर हो, चाहे छोटी मोटी टेम्पो का ड्राइवर हो, क्या लगता है उन ड्राइवर को आज के टाइम पे, आज के ऑटोमोबाइल के कार का ड्राइवर बनाएंगे? नहीं ना? हाँ या नहीं? नो सर। क्यों आपको लगता है क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों लगता है क्यों नहीं बनाएंगे? बताइए, कोई बात नहीं, हम लोग आपस में तो डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग यहाँ कोई सर एआई नॉलेज या उनसे बेहतर बनता है, क्या बोल रहे उनसे थे? बेहतर कार चला सकता है सर, नहीं रखा जाए। पता नहीं, मुझे आवाज साफ साफ समझ में नहीं आया, क्या बताया आपने? फिर से बोलिए अंकुर, आप क्या बोले हैं? अच्छा है। सर बोले कि एआई उनसे बेहतर ड्राइव कर सकता है, इसीलिए उनको काम नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, एआई की तो बात ही नहीं कर रही। एआई तो अभी आया है। जैसे आप सोचो, कल तक जो जो लोग
जो गाड़ियां चलाते थे, पुरानी गाड़ियां या जो भी हमारे दादाजी के समय चलाते थे, उनको आज की नई गाड़ियां चलाने के लिए देंगे क्या आप? नो सर, क्यों नहीं देंगे? एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास। तो क्या करना पड़ेगा उनको आज की गाड़ियां चलाने के लिए? सिखाना होगा। उनको सीखना होगा, उनको नए गाड़ियों के बारे में जानना होगा, उनको नई यस सर। जो गाड़ी की ट्रेंड है, कैसे चलती है, क्या है स्पीड, क्या है, मतलब वो नए जो नई चेंजेस आए हैं उनके बारे में सीखना होगा। और वो सीख जाएंगे तो फिर हम उनको रख सकते हैं। यस सर। अब सोचो कि कोई जो है 10 साल पहले से गाड़ी चला रहे हैं और उस तरह के पुराने गाड़ी को चला रहे थे, और अभी उनको 2 साल ट्रेनिंग दे करके सिखा करके नए ट्रेन गाड़ी की तरह भी हो गए। अब हमारे पास 2 बंदा है हायर करने के लिए। आपको ये पास गाड़ी है और आप चाहते हैं कि 2 ड्राइवर आपके पास आया है कि आप मुझे रख लो अपने घर में ड्राइवर। एक वो ड्राइवर है जो कि 10 साल पुराना एक्सपीरियंस वाला है, 2 साल से एक्सपीरियंस लेके सीखा हुआ है, और एक दूसरा है जो इसी जनरेशन का है, जो इसी गाड़ी को 10 साल से चला चला रहा है। आप किसको हायर करोगे? जो इसी साल से 10 तक गाड़ी को चला है। अच्छा, अब इस यूज केस से 2 चीजें मालूम चली, क्या क्या? एक, जिसके पास कि ज्यादा आप, एक्सपीरियंस होगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा। हाँ देखो, ऐसा आपने तो करा नहीं, आपकी गाड़ी के वक्त आपने उसको हायर करा जिसको इस जनरेशन का था। ज्यादा एक्सपीरियंस तो उसको था जो कि पिछले जनरेशन में भी चलाया, इस जनरेशन में भी ट्रेनिंग लिया और एक्सपीरियंस लिया, फिर भी आप उसको हायर नहीं किए। क्या ऐसे ही काम चलता है। कॉमन एक स्टेटमेंट है, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन इन ए कॉमन पीपल। लोग बहुत बार बोलेंगे आपको कि क्या, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है, पर वो कॉमन सेंस समझ नहीं पाते है क्या। ठीक है, तो उसी तरह से अब इस बात को हम अपने जीवन में सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाला टाइम जब आप जॉब के लिए निकलेंगे तो उनको क्या चाहिए होगा? जो नई तरह के दुनिया है, जो नई तरह के टेक्नोलॉजी है, उसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर मैं जॉब ढूंढने जाऊंगा तो मेरे लिए पुराना जनरेशन प्लस नया जनरेशन दोनों का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, तब मुझे कोई हायर करेगा। तो आज आप जिस जीवन में और जिस जगह पर हैं और जिस एज में हैं और जिस जनरेशन में हैं, आपको अभी आपके जनरेशन में चल रहे नए चीजों को समझना होगा थोड़ा बहुत। अभी तो क्लास 6 में है तो थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन जब जॉब या उधर साइड जाते तो हमें एआई समझना होगा, क्योंकि आप जब क्लास तक 9 आओगे ना, आप जब तक बाहर आओगे ना, हेलो, यस सर। तो आप लोग जब जॉब या कोई भी काम करने आओगे ना, तब तक मार्केट काफी बदल चुका होगा, चीजें काफी टफ हो चुकी होगी। तो लेकिन वो आपके लिए बहुत इजी हो सकता है अगर आप अभी से उस टेक्नोलॉजी और उस ट्रेंड का थोड़ा थोड़ा यूटिलाइजेशन करना शुरू करें तो। मेरी बातें समझ में आ रही है या ओवर द फ्लो जा रही है, या मतलब कैसा है, मतलब चीजें समझने, समझ में आ रही है। एआई समझ पा रहे हैं कि एआई क्या है अभी तक, कि मैं ऑफ टॉपिक हूँ? नो सर, समझ में आ रहा है। ओके, बॉडी कोई सवाल किसी को? आर्थ, आपके पास कोई सवाल है आर्थ? नहीं सर, अच्छा, आपने हाथ ऊपर किया था तो मैंने पूछा। गलती से। कोई बात नहीं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या है? एक ऐसी सिस्टम है जिसको हम बता दें कि भैया ये बस है, ऐसा दिखे 4 चक्के वाला, ऐसा कलर, तो ये स्कूल बस है, या ऐसा दिखे तो ये रेड बस है। तो ऐसे ही हम अपने छोटे बच्चों को सिखाते हैं। बच्चा जब छोटा होता है उसको सिखाना शुरू करते हैं कि बाबू ये सामने बाहर मत जाओ, ये डोर है, ये चम्मच है, ये प्लेट है, ये कटोरी है। उसी तरह हम एक मॉडल को भी ट्रेन करते हैं और उसको हम बताते हैं कि ये चीजें ये है। कैसे है, मैं आगे के किसी सेशन में एग्जाम्पल के साथ वीडियो पे दिखाऊंगा, लेकिन अभी फ्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, उतना आगे जाऊंगा तो। अभी सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो भी चीजें हैं ना हमारे आसपास,
जो भी चीजें हमारे आसपास है, आज के डेट में आपको अगर कोई चीज सीखना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज आपको आसानी से समझ में नहीं आती ना, वो चीज को आसानी से समझने की कोशिश करनी है, और उसके बाद भी समझ में नहीं आए ना तो उसको छोड़ देने की जरूरत है। ठीक है, अब एआई समझ गए, एआई का फायदा हम कैसे उठा सकते हैं। तो अभी कैसा है कि अभी बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है, तो आप लोगों को जो इतनी सवाल होते हैं ना, उन सवाल का जवाब आप एआई से आज के डेट में पूछ सकते हैं, और एआई आपको एक घर बैठा एक स्मार्ट टीचर की तरह आपको जवाब देगा, और काफी अच्छे तरह से जवाब देगा। तो आपको बहुत ज्यादा ढूंढने, खोजने और ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चैट जीपीटी को ओपन करेंगे, आप लोग कोई चैट जीपीटी यूज करते हैं? हेलो, सर कभी कभी यूज करते हैं। करते हैं ना, बस मैं यही जाना, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा यूज कीजिए, कोई भी टूल को रेगुलर भी यूज करने से दिक्कत नहीं, सिर्फ उसको सही काम के लिए यूज कीजिए। ठीक है, तो लेकिन उस पर पूरा डिपेंडेंट मत होइए, ये भी बहुत जरूरी है समझना कि बहुत लोग ना इतना आलसी हो जाते हैं कि हर चीज माँ पे डिपेंडेंट होते हैं, पिताजी पे डिपेंड, ना एक गिलास पानी भी तो चाहिए, मम्मा से ही चाहिए। तो जब इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं ना लोग, तो वो ग्रो नहीं करते। ठीक है, तो वो टूल है हमारे लिए, वो हमारा बॉस नहीं है। पता नहीं है, मैं छोड़िए, मैं यहीं पे रुकता हूँ। आप लोगों को कोई सवाल है इसके बाद? नो सर। नो सर। पंकज जी, आपको कुछ कहना है? ये कंटेंट सही जा रहा है? क्योंकि बच्चों का मैं नहीं जानता कौन कौन से क्लास में है, किस लेवल का नॉलेज है, मुझे लगता है ज्यादा ओवर भी ना दूं, मतलब डाइजेस्ट कर रहा हूँ उनके उनके लेवल पे ही है, तो Yes, sir. No, sir. आपको पता है मैं कहाँ रहता हूँ? आप लोगों को No, sir. हेलो? अच्छा, तो मैं ना यहाँ, नहीं सर। अच्छा, मैं कनाडा में रहता हूँ, ठीक है। कनाडा। कनाडा यस। सेड लास्ट गो। यहाँ पे बच्चों को जो स्कूल होता है ना, बच्चों का जो स्कूल होता है ना, मेरा बेटा स्कूल में जाता है, अभी ग्रेड 3 में है। तो ये बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो यहाँ पे स्कूल में कोई ड्रेस नहीं है। आपके यहाँ ड्रेस है ना, ड्रेस टाई ऐसा कुछ कुछ है ना? हेलो? हाँ हाँ, तो आप यस लोग के यहाँ सर। ड्रेस है ना, आप लोग ड्रेस पहन के जाते हैं, फिर कई सारे सिलेबस है, कई सारे सब्जेक्ट है। अगर ऐसा ना हो और कहा जाए कि आपको जो पहन के आना है घर से पहन के आए, लेकिन ढंग के कपड़े पहन के आइए, और जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है बस उसी को पढ़िए, तो कैसा रहेगा? सर एक सवाल था। पूछिए। हाँ, बस। मन मर्जी, मतलब जो सब्जेक्ट का लिमिट है वही सब्जेक्ट में से कोई एक चूज कर सकते हैं, पर वही आपका प्राइमरी है अंटिल 10th। हाँ, किसी को सर एक सवाल था, सवाल था पूछे पूछे। कि जब अगर हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोग को कोई एक स्पेसिफिक जॉब करना होता है जिसमें एक स्पेसिफिक नॉलेज का जरूरत होता है, तो हम लोग ये सारा सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अगर हम आपसे बोलें कि आपको मैंगो पसंद है, तो आप यस क्या सर। बोलोगे? पसंद है ना? और अगर हम आपको बोले कि ब्लूबेरी पसंद है, तो क्या बोलोगे आप? यस सर। ब्लूबेरी खाए हैं? यस। ओके। अगर हम आपको बोले कीवी पसंद है आपको, तो क्या बोलेंगे आप? सर
हाँ, तो आप कोई भी चीज कैसे बता पा रहे हैं कि आपको ब्लूबेरी पसंद है, मैंगो पसंद है, क्योंकि आपने ये सब कुछ खाया है ना। यस Yes, सर। sir. अगर आप सबको थोड़ा थोड़ा टेस्ट नहीं करोगे, तब तक मैं आपसे बोलूं आपका फेवरेट फूड्स कौन सा है, तो कैसे बताओगे? टेस्ट तो करना पड़ेगा ना सब कुछ। तो इसीलिए Yes, sir. इनिशियल स्टेज में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, सेम लाइक फ्रूट्स, कि भैया आप सबको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करो और सब में थोड़ा थोड़ा नॉलेज लो। ठीक है, कोई एक्सपर्टीज तो सिखाई नहीं जाती, थोड़ा थोड़ा हर नॉलेज सब्जेक्ट में आपको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ताकि जब आप थोड़ा बड़े हो जाओ तो आप खुद डिसाइड कर सको कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट मुझे पकड़ना है। नहीं तो क्या होगा, बाद में बड़े हो जाओगे, बोलोगे डैडी आपने तो ये सब्जेक्ट कभी बताया ही नहीं हमें। अभी हमने आपको सारे ऑप्शंस दिए, सारे ऑप्शंस में नॉलेज भी दिया, टीचर भी दिया, ट्रेनिंग भी दिया, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा है। इसीलिए देखना, बड़े होकर के लोग डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पायलट बनता है, कोई होटल मैनेजमेंट करता है, क्योंकि इंटरेस्ट हर कोई को कुछ ना कुछ करने का है, लेकिन वो इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर पाना और अपनी कैपेबिलिटी के साथ उस इंटरेस्ट को मैच कर पाना भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रश करते हैं मुंह में, ब्रश करते हैं आप लोग, यस सर। करना जरूरी है। Yes, sir. क्यों, शेर ब्रश करता है क्या? कुत्ते ब्रश करते हैं क्या? उनका दांत कभी आपने खराब देखा है? नहीं sir. तो हमें क्यों करना है ब्रश? Human है. ठीक है, थोड़ा बहुत सही है आंसर, आगे भी बहुत कुछ है, तो ये आप सोचिएगा। ठीक है, आप लोग राइट हैंड से ब्रश करते हैं या लेफ्ट हैंड से ब्रश करते हैं? दोनों sir. दोनों हाथ से ब्रश करते हैं? यस सर, दोनों हाथ। सही है। कभी पाँव से भी ब्रश करने की कोशिश किए हैं? नहीं sir. अगर करेंगे तो क्या होएगा? नहीं होगा. नहीं होगा ब्रश। मैं तो कई सारे लोगों का फोटो वीडियो भेज दूंगा जिनके हाथ है ही नहीं, वो तो पाँव से ही आज तक जीवन में सब कर रहे हैं। सर सर प्रैक्टिस। क्योंकि उन लोग को आदत हो गई है. तो इसी चीज को हम सुनना चाहते थे आप लोगों से, कि इंसान को ना कोई चीज की आदत हो जाती है ना, तो जब उसको वो आदत छोड़ के कुछ और करना पड़ता है ना, तो सीधा पहला जवाब होता है नहीं होगा सर। ठीक है, क्योंकि हम उस कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते। हम कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहते। यही डिफरेंस है कि जब एक देखना, एक जब इंसान 40-50 का हो जाता है तो जल्दी चेंज नहीं करता, लेकिन जो बच्चे 5-6 साल से होते हैं ना, अप टू 10-12 ईयर तक, तो वो बहुत ज्यादा उनके साथ आप चेंज कर सकते हो, उनको जो बोलोगे वो कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए इनिशियल स्टेज में बच्चों को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और बाद में जाके बच्चों को कुछ 1-2 ही सब्जेक्ट पढ़ाने दिए जाते हैं, उसमें ही एक्सपर्ट बनाया जाता है, क्योंकि उस वक्त तक वो चीज समझ चुके होते हैं, इंटरेस्ट सेट हो चुका होता है और उनका जो प्रैक्टिस है, जो ब्रेन सेट है, वो तैयार हो जाता है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मिला या आपको और कुछ चाहिए? मिल गया सर। और कोई सवाल है? नो सर। अच्छा, हिमांशु जी, आप जो बता रहे थे आप अपने बच्चे के बारे में, ग्रेड 3 में जाता है, तो वो उनके लिए भी सिलेबस नहीं होता है? नहीं, सिलेबस कुछ नहीं होता है। ठीक है, कुछ बुक्स है, मैथ पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है, कोशिश वो ये करते हैं कि बच्चों को लिखने के लिए आ जाए, बोलने के लिए आ जाए और कैलकुलेशन करने को आ जाए। अच्छा। तो उनका फोकस देखिए, पढ़ा अब इतिहास नहीं बैठ के पढ़ाते, हिस्ट्री नहीं पढ़ाते, वो बुक पढ़ाते हैं जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट। स्टोरी बुक्स होते हैं, उनको लाइब्रेरी होता है, उनको हर हफ्ते कुछ बुक
हर स्कूल में लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी से बुक दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको पढ़िए, स्टोरी को सुन समझिए, या खुद पढ़ सकते तो पढ़िए, नहीं तो मॉम डैड को बोलिए पढ़ाएंगे, आपको स्टोरी को समझाएंगे और आप हमारे पास स्कूल में आकर के बाद में सारे बच्चों को ये स्टोरी सुनाएंगे। तो इससे स्पीकिंग की प्रैक्टिस सिखाते हैं, ठीक है। राइटिंग करने से राइटिंग सिखाते हैं और कैलकुलेशन कराते हैं प्रैक्टिकली, बनाना लेके, टॉय लेकर के, ताकि बच्चे इस तरह से सीखें। इंडिया की तरह उतना सिलेबस, उतना बैग, उतना ड्रेस, उतना कोट कुछ भी नहीं है। बच्चे जो चाहे वो पहन के आ सकते हैं, कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई कोई फालतू का तामझाम नहीं है, ठीक है। उसके बाद ज्यादातर टाइम उनको फिजिकल फील्ड में खटाते हैं, मतलब खेलने के लिए देते हैं, दौड़ने के लिए देते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत है अभी। तो वो क्या करते हैं कि उनको बोलते हैं ये सिलेबस खत्म करो, फिर गेम है, फिर ये खत्म करो, फिर गेम है। सो वो इस तरह से बांध के रखते हैं, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट को बनाए रखते हैं, लेकिन उनका पर्पस सिर्फ यही है, बच्चों को अप टू 8 उनको लिखना आना चाहिए, सोचना अच्छे से आना चाहिए। डिसीजन मेकिंग के लिए स्टोरी बुक्स बहुत सारे पढ़ाए जाते हैं, जो स्टोरी बुक मैडम खुद भी क्लास में पढ़ेगी और उनको भी सुनाएगी। उनका कोई एग्जाम नहीं होता, ऐसा हार्ड के एग्जाम पास करना है फिर नेक्स्ट में जाना है, ऐसा नहीं होता। अच्छा है, तो बहुत अच्छा है ये तो। काश हम लोगों के टाइम में ऐसा होता। वो कैसा है, दोनों के प्लस और माइनस है, मैं बोलूंगा। अभी कैसा होता है, हमारे इंडियन कल्चर के जो पढ़ाई है ना, उसमें उसमें बच्चों को ना एक प्रेशर झेलने की ताकत हो जाती है। इस मॉडल में आप देखिए, इनको प्रेशर झेलने की ताकत नहीं होती, क्योंकि यहाँ प्रेशर दिया ही नहीं जाता। वो प्रेशर एग्जाम के पहले का और इस तरह का माहौल नहीं बनाया जाता। तो ये दोनों ही अच्छे हैं। एक जगह में काफी ओपन और फ्रीडम है, दूसरी जगह पे पकड़ के करवाते हैं हम, नहीं तो बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं बच्चे इधर उधर। तो यहाँ पे भी वही होता है कि आप देखिएगा, इसीलिए बाहर यूएस में, कनाडा में, यूके में लोग सीधा या तो टॉप नॉच ही हो जाते हैं, या तो फिर छोटा ही मोटा रहते हैं। दूसरा चीज कैसा है कि इंडिया और कनाडा में दोनों में अलग है कल्चर, क्योंकि इंडिया में अगर कोई कार ड्राइवर है ना, तो उसकी कितनी सैलरी होगी, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, उसकी सैलरी लाखों में नहीं होगी। अब कनाडा में अगर कार ड्राइवर है, चाहे बस ड्राइवर, उसकी सैलरी उतनी है लाखों में जितना एक आईटी वाले का है। 5-10 हजार कम होगा, पर उसकी सैलरी भी उतना ही है ऑलमोस्ट। तो तो डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पे। आप अगर छोटा काम भी करेंगे ना, तो आपकी इनकम ऑलमोस्ट उतनी ही रहेगी। वहां इंडिया में अगर वो छोटा काम करेगा बच्चा, तो उसकी इतनी इनकम नहीं रहेगी कि वो घर चला पाएगा अच्छे से। तो देयर इज अ फोर्स टू गो फॉर इट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इंडिया में भी जिनको साइंस पसंद था, पर मजबूरी में आईएएस ऑफिसर बनने गए, या आईएएस के तरफ पसंद था, ए टू बी करे, क्योंकि माहौल और सिचुएशन अलग है। वहां पे वैल्यू ऑफ कैश डिफरेंट है। ऐसा इंडिया, कनाडा और यूएस में नहीं होता। कनाडा यूएस में मेरा जो, हम एक भी स्टाफ नहीं रख सकते, मतलब हमारा जो बस का ड्राइवर है उसकी सैलरी भी अराउंड $1 लाख होगी, उससे कम नहीं होगी। पर $1 लाख इंडिया में कौन देगा बस के ड्राइवर को? कौन देगा उतना रिस्पेक्ट? यहाँ के बस के ड्राइवर भी सूट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, स्मार्ट, एकदम इक्वलिटी, वो इंडिया में नहीं मिलेगा। तो अब इंडिया के बच्चों को अगर आप छोड़ दीजिएगा कि भाई तू कुछ भी पढ़, अपना ड्राइवर बनना है तो ड्राइवर बन, तो घर नहीं चला पाएगा ना, तो उसके पेरेंट्स पीछे पड़े रहते। मैं इसमें एक बात जोड़ दूं, कई बार ऐसा होता है कि हाँ, नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, वो ओवर टाइम वगैरह सब मिला करके हमारे जैसे, आप हिमांशु जी जैसे इंजीनियर लोगों से ज्यादा पैसा बनाते हैं, नीचे वाले लोग जो जिनको हम करेक्ट। टेक्नीशियन बोलते हैं फैक्ट्री सब में। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है एवरेज जो है टेक्नीशियन वगैरह की भी सैलरी जैसे है, मान लीजिए इन्होंने बताया कि 100,000 तो उसका है, 1 लाख उसका है, जो भी हुआ 100,000 मान लीजिए। इंजीनियर की सैलरी होगी एवरेज 150,000 से 250-300 के बीच में होगी सैलरी। लेकिन हम लोग जो प्रोफेशनल है, हम लोग ओवर टाइम नहीं कर सकते हैं। वो हर एक घंटे का ओवर टाइम कर सकता है। तो ओवर टाइम करके जो है कई बार जो है सारा ओवर टाइम का जोड़िए तो हमारे आपके जैसे जो इंजीनियर लोग हैं, उससे उसकी टेक होम पैसा जो है साल के अंत में हमसे ज्यादा रहता है। तो इसीलिए मतलब लाइफ स्टाइल सबका एक जैसा है। यहाँ पर ऐसा सिस्टम
कैपिटलिज्म में ऐसा सिस्टम बनाए हुए है कि आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। देखिए, और दूसरी बात यह है कि उसको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। अब सरकार ने यहाँ पे रूल भी बना दिया है कि ओवर टाइम पे उसको टैक्स नहीं लगेगा। अमेरिका में, यूएसए में तो उसकी जो बेस सैलरी है टैक्स सिर्फ वो उसी पर देता है। हम टैक्स किस पर देंगे? टोटल सैलरी पर टैक्स देंगे। तो और टैक्स की ब्रैकेट भी बढ़ती जाती है। जो इतना से इस रेंज में रहेगा तो आपको 30% है, इससे ऊपर चला जाएगा तो 40% हो जाएगा, उससे ऊपर चला जाएगा तो 60% हो जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि आपको लोगों को इसी का सुनाया किस्सा कि अभी न्यूयॉर्क सिटी का मेयर जो ममदानी हो गया है, उसके माता-पिता तो दोनों ही इंडियन हैं। वो कौन थी? मीरा नायर, जो बहुत बड़ी फिल्म मेकर थी, उनका वो बेटा है। अपने हिंदू हैं, उनका हस्बैंड जो है प्रोफेसर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वो मुसलमान है, वो लेकिन है दोनों इंडिया के ही। उनका बेटा है। अभी वो पहली बार जो है एक कोई इंडियन का बच्चा जो है मेयर बना है। अभी वो कह रहा है कि कल अभी 2 दिन से चल रहा है वो जो शॉर्टेज है गवर्नमेंट का, न्यूयॉर्क सिटी का जो अपना जो बजट है उसको पूरा करने के लिए जो न्यूयॉर्क सिटी में जितने मिलनार हैं, उसके ऊपर वो टैक्स बढ़ाने की बात कर रहा है ममदानी। देसी सोशलिज्म की बात हो रही है। तो अब जितने भी वहाँ पर बड़े-बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, मतलब पैसे वाले लोग हुए कि जिसकी जो एवरेज यहाँ के लोगों का न्यूयॉर्क सिटी में जिनकी 10-15 मिलियन वैल्यू है जिनकी, वो लोग एवरेज लोग हो गए। जो मल्टी बिलियनियर जो लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनको वो लोग कह रहे हैं कि जब तुम ऐसा करोगे तो हम लोग, अब तो इलेक्ट्रॉनिक एज है, अब डिजिटल एज है, हमको अब न्यूयॉर्क सिटी में रहने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। हम दूसरे सस्ते जगह मियामी चले जाएँगे, फ्लोरिडा चले जाएँगे, कहीं और चले जाएँगे, हम वहाँ से बिज़नेस करेंगे। और ये अभी तो ये न्यूयॉर्क सिटी वाले थ्रेट दे रहे हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी का मेन बिज़नेस क्या है? ये इकोनॉमिक स्टॉक मार्केट है वहाँ का। वहाँ कोई फैक्ट्री तो है नहीं। वो बिज़नेस टाउन है मोटा-मोटी पूरी दुनिया का, समझिए सबसे टॉप फाइनेंशियल सेंटर है। और फाइनेंस का काम जो है अब न्यूयॉर्क सिटी में रह कर के ही करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप कहीं से भी आजकल कर सकते हैं। हाई लेवल की डील करना है, मीटिंग करना है, आना-जाना है। तो वैसे भी धीरे-धीरे लोग छोड़ कर के यहाँ से भाग रहे हैं। लेकिन ये जो धमकी दिया है तो बोल रहे हैं सब बिलियनियर लोग बोल रहे हैं कि हम तब सिटी छोड़ देंगे, तुमको करना जो करना है। तो हम सिटी छोड़ देंगे, क्या मतलब हुआ इसका? वो कंपनी वहाँ से मूव करके न्यूयॉर्क सिटी से अगर मान लीजिए फ्लोरिडा में चला जाता है, तो कंपनी का भी उस टैक्स जो मिल रहा था न्यूयॉर्क सिटी को या न्यूयॉर्क स्टेट को, वो बंद हो जाएगा। प्लस इसका जो इंडिविजुअल टैक्स इसको मिल रहा था, इंडिविजुअल टैक्स वो भी बंद हो जाएगा। तो ये अभी बहस चल रही है यहाँ पर। तो ये कैपिटलिज्म में होता है कि आप जो है एकदम कैसे आप काम करते हैं, आपको पॉलिसी आप कुछ भी इंडिया की तरह जो मन हुआ पॉलिसी बना दीजिएगा, सो नहीं चलेगा यहाँ पर। वो गिव एंड टेक, अगर आप ज़्यादा बदमाशी कीजिएगा तो लोग कहेगा ठीक है तुम रखो अपना न्यूयॉर्क सिटी, हम चले यहाँ से, दूसरी जगह जाके हम अपना बिज़नेस करेंगे, क्यों हम यहाँ पर करेंगे? लंदन चले जाएँगे। बहुत सारे कंपनी ने, अमेरिका ने जब आँख दिखाना शुरू किया तो आप लोग सुने होइएगा, जैसे जेफ बेजो की कंपनी है, 2 कंपनी उसने यहाँ से ट्रांसफ़र करके अबू धाबी में उसका हेडक्वार्टर कर दिया। मल्टीनेशनल कंपनी जो है कोई ज़रूरत नहीं कि उसका हेडक्वार्टर अमेरिका में ही हो। हेडक्वार्टर ही यहाँ से मूव करके दूसरे देश में इसीलिए वो जो है आपका गल्फ कंट्री सबका इतना जो भाव बढ़ गया है, क्योंकि सारे अमेरिका से ही नहीं, यूरोप के सारे कंपनीज़ वहाँ पर मूव हो रहे हैं, टैक्स के चलते। क्योंकि अगर आप ज़्यादा टैक्स करेंगे इसको, रिच लोगों को, तो वो लोग भी तो रास्ता देखते हैं ना कि हम कैसे बचाएँ। हर आदमी चाहता है कि हम कम से कम गवर्नमेंट को टैक्स दें। तो बैक टू यू गाइज़। तो वही मैं कह रहा था कि इंडिया में कैसा है कि सैलरी में बहुत डिफरेंस है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे बस ड्राइवर भी मतलब अच्छा खासा पैकेज कमा के भी लोग ना एक भी स्टाफ हायर नहीं कर सकता। इसलिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम बुरा नहीं है, वो उसी तरह चाहिए। कहते हैं ना जैसा जैसा माहौल वैसा ही काम करना पड़ता है। तो जैसी देश वैसी भेष। बेस की जरूरत है। हाँ, सही बात है। नहीं सर, रिक्वायरमेंट ये गलत फहमी है, ये एक्सक्यूज है। इसको हम हमेशा एक्सक्यूज बोलते हैं। हम वहीं से आते हैं। देखिए, आबादी कभी कम होगी नहीं और रिक्वायरमेंट भी कभी कम होगी नहीं। अगर रिक्वायरमेंट कम है तो आप एक काम करिए ना, रोड किनारे लगा लीजिए ठेला, एगो इंडिया में आप लगा सकते हैं, और शुद्ध पानी बेचिए। देखिए खरीदने के लिए लोग कितने आएंगे। तो जो लिमिटेशंस है ना, आप उसको एडवांटेज भी बना सकते हैं, पर हम बनाते नहीं है ना।
लोग Actually, ज्यादा होने India- का बेनिफिट भी है कनाडा में। तो सॉरी सर, मैं बीच में बोल दिया। नहीं बोलिए आप। हाँ। सॉरी, हमको भी आइडिया आया था, पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद हम इंडिया में अभी कनाडा में लोग बहुत कम है, अपॉर्चुनिटीज है, पर उसके साथ महंगाई भी बहुत ज्यादा है। तो हमको क्या होता है ना, ये जो होता है ना, जैसे ही हम कभी कुछ बोल देते रहे, नहीं ये ज्यादा इसलिए नहीं, वो एक तरह से एक्सक्यूज है। आप कनाडा आके रहिए, आपको लगेगा यार लोग ज्यादा होने चाहिए, ये एक्सक्यूज देंगे लोग उस सर्कमस्टांस को जीने के लिए। तो ये इस तरह से काम करता है। लेकिन कोई चीज अगर ज्यादा है तो उसका एडवांटेज भी होगा। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज बनी नहीं जिसका प्लस और माइनस नहीं है। जस्ट अपन को मैथ यूज करना है कि उसका प्लस को कैसे अपने प्लस में ऐड कर सकते हैं और अपना माइनस को कैसे हटा सकते हैं। दैट्स इट। बिल्कुल। तो अच्छा, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं SBI अब देखिए, अब जब बात इस तरह की चलती है, जो इस तरह के सोच रखते हैं ना, अभी मैं SBI, पता है SBI बैंक, SBI बैंक का निकाला मैंने कलर, ठीक है। पहले बोलते थे सब लोग, अरे ब्राह्मण को मिलता नहीं है, ब्राह्मण का ये है, वो है, लंद है, फंद है, बहुत तरह के सवाल चलते थे, ठीक है। मेरे पिताजी पढ़ते, भाई नौकरी कर, सरकारी नौकरी कर, सरकारी नौकरी। फिर निकाला, ज्वाइन किया, फिर छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि अब मैं भी ब्राह्मण, मैं भी उसी भीड़ का बंदा, ठीक है। तो ये कहने को है, क्योंकि मुझे वो मन नहीं लगता था, वो एकदम फिक्स एक जैसा काम, रोज जाओ, रोज किच लोग, पब्लिक वैसी किच, आपको तक मजा नहीं आता, ठीक है। फैसिलिटी मिलता है, फिक्स है, वो मिलता है, माना। लेकिन अगर मैं वहीं रहता, वहां पे 5 साल में जितना कमाता, मतलब या 50 साल में जितना कमाऊंगा, उतना मैं यहाँ पे 10 साल में निपटा दूंगा कमा के। प्लस कितने सारे एक्सपीरियंस, कितने सारे फीचर्स, जब मेरे पास पैसा है तो मैं सब कुछ कर लूं। तो ये सोच का खेल है थोड़ा सा। नहीं, थोड़ा सा इसको समझिए। इंडिया में क्या है मेन प्रॉब्लम, कि हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है असली, हम लोग कैपिटलिज्म को नहीं मानते हैं, हम लोग सोशलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सोशलिज्म जो है, हुआ क्या, हमने कल ही परसों एक आर्टिकल पर लिखा है कि रशिया ने, जब स्टालिन आया 1925 ईस्वी में, तो रशिया में वो क्या बोलते हैं उसको, स्टालिन के राज में जब वो लेनिन मर गया, तो वो था तानाशाही उसने कर दिया वहां पर। उसका ये था कि जिस तरह से यूरोप, जर्मनी इंडस्ट्रियल, उसने लड़ाई में देखा था कि इंग्लैंड और जर्मनी के पास जो है इतना कुछ है, बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज है, रशिया कुछ भी नहीं था उसके टाइम में, बहुत मामूली था। तो उसका दिमाग एक ही चीज था कि हमको पूरा रशिया को इंडस्ट्रियलाइज करना है। और उसने अपने तानाशाही में, पार्टी तो एक ही थी, कम्युनिस्ट पार्टी, डेमोक्रेसी तो थी नहीं, उसने सबको पूरा टाइट किया, पूरा कंट्री को पूरा इंडस्ट्रियलाइज कर दिया अगले 10-15 साल में। लेकिन बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत कुछ हुआ, जो भी हुआ, लेकिन हुआ क्या, तो जो रशिया जो था, जो बिल्कुल ही जिसका कोई इज्जतदार कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री में या सेमी डेवलप्ड कंट्री में नामो निशान नहीं था, वो स्टालिन के टाइम में 50 आते जो है वो रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के बराबर का हो गया। यानी यहाँ तक कि ऊपर जो है आसमान में जाने के लिए जो प्रोजेक्ट थे, नेक टू नेक अमेरिका और रशिया के बीच में लड़ाई शुरू हो गई कोल्ड वॉर में, कि कौन पहले चांद पर जाएगा। तो यहाँ इतना वो डेवलप कर दिया। हुआ क्या, इस चीज को हमारे देश के नेताओं ने देखा कि बाप रे बाप, रशिया तो कल तक कुछ भी नहीं था और आज देखो कहाँ पहुंच गया है। तो उन्होंने एकदम समझा कि उसके कितने सारे ड्रॉबैक थे, कैसे हुआ इसकी बात उन्होंने नहीं सोची। उन्होंने सीधे सोचा कि कम्युनिज्म के चलते ये हुआ है, और कम्युनिज्म और सोशलिज्म को अडॉप्ट कर दिया गवर्नमेंट के पॉलिसीज में, सारे में। ये जो हुआ, ये जो डिसीजन हुआ, हमारा जो सोशलिस्टिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसने ये गलत मोड़ दे दिया कंट्री को, कि आपकी सारी पॉलिसीज गलत होने लग गई। अब उसी का हिस्सा है रिजर्वेशन, जैसे हम लोग कर रहे हैं, कि अमेरिका जैसे देश में कोई रिजर्वेशन नहीं, यहाँ भी तो है, ब्लैक लोग हैं, हिस्पैनिक हैं, सब लोग, वो लोग पिछड़े हुए लोग हैं, लेकिन कहाँ कभी यहाँ पे कभी बात हुई कि भाई इनको स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाए? कोई पढ़ाई तक में नहीं कोटा है ना, आप सबके लिए। यहाँ पर क्या सिस्टम है, आप लोग सब के सब आपको बैंक से लोन मिल जाएगा पढ़ने के लिए,
इसीलिए पैसा के चलते आप नहीं पढ़ेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो लोन आपको सुधारना जिंदगी भर में आपको सुधारना है, फ्री में नहीं है वो लोन, कोई फ्री भी नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो इन लोगों ने कर दिया। उसी तरह देखिए यहाँ के जितने भी एमएलए एमपी मिनिस्टर हैं, किसी के पास सरकारी घर नहीं है। हाँ, किसी के पास सरकारी घर नहीं है। एक प्रेसिडेंट को छोड़ करके शायद वाइस प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के पास है, और स्टेट में गवर्नर के पास एक अपना घर होता है। बाकी किसी भी एमएलए एमपी के पास सरकारी घर गाड़ी ये सब कुछ भी नहीं है। हाँ, सब कुछ जो है सरकारी है, अपना सरकारी गाड़ी अब सरकारी काम में यूज कीजिए, वो अलग बात है, लेकिन ये नहीं कि आप मौज मस्ती पूरी टैक्स से कर रहे हैं, तुरंत हल्ला हो जाता है। तो ये है कैपिटलिस्टिक पैटर्न यहाँ पर सिस्टम है। सब चीज में सरकार को छोटी करने के लिए लड़ाई होती रहती है। हमें से अपोजिशन पार्टी सब लोग जो है, रिपब्लिकन पार्टी क्या कहती है, गवर्नमेंट के साइज को छोटे करो, गवर्नमेंट के जो इम्प्लॉई हैं उसको हर एक साल घटाते जाओ, इनका ये कहना है। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में उसको घटाओ। यहाँ पर रिपब्लिकन का ये कहना है, डेमोक्रेटिक का है, वो अपने यहाँ का कांग्रेस और जो सब पार्टी जैसे अपने यहाँ वो है, वो बोलते हैं कि कर्ज लेके पूरा बढ़ाते जाओ, सरकारी नौकरी बढ़ाओ, ये करो। तो ये एक यहाँ भी वो थॉट है, लेकिन यहाँ पर जनरल जो लोगों का माइंडसेट है उसको नहीं मानते हैं। वो लोग कैपिटलिस्ट माइंड के लोग हैं, वो कहते हैं नहीं ये गलत है, इसीलिए बैलेंस हो जाता है। और वो सब लोग जैसे बाइडेन के टाइम में आप देख ही रहे थे कि बाइडेन क्या किया था, पूरा बॉर्डर खोल दिया था, सब लोग पूरे दुनिया के आ रहे थे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों की जरूरत थी, लोगों का लिमिटेड लोग थे, तो क्या हुआ, लोगों का वेज बढ़ने लगा था, आवरली। यहाँ पर आवरली रेट आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, 1 घंटा अगर कोई कार्य करेगा मजदूर, अपने यहाँ से खेत के जोन करते हैं, उसको आपको $16 देना पड़ेगा। यानी अगर 8 घंटा कर दिया काम आपके खेत में आकर के, कितना हो गया, 16 कितना हो गया, जोड़िए भाई, मैथमेटिशियन लोग बहुत हैं। Aryan, how much is 16 times 8? How much is that? Who can tell me the number? Yes, 128. 128. 16 times, huh? 128. 120. Okay, and multiply, please multiply it by with the 90 average rate of the dollar to rupees. How much is that? 128 times 90. How much is that? 128. No, it cannot be 150. 128 times 90. How much is it? I think so. 100,000 something. No. Do calculation, please. It cannot be 100,000. 128 टाइम अगर 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको 128 को 9 से करो. There are so many. Where is Earth? Don't you have anybody computer or calculator? So basically, just I'm trying to say that एक आदमी यहाँ का मजदूर अगर खेत में काम करता है तो you have to give him $16 per hour. So you multiply it. How much is that? And then you convert it into rupees. Exchange rate is 90 or 92 right now. If you simply do for simple 33 lakh. Huh? 33 lakh. No, it doesn't make sense. How can it be 8 times 16, 8 hours times $16 per hour? So 8 times 16 is how much? 108 हो गया. एंड इसको अगर आप 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 टाइम 90 कितना हो जाएगा देखिए. तो बेसिकली जो भी हो, तो दैट इज एक दिन में जो सबसे लोएस्ट इनकम वाला आदमी है अमेरिका का, दैट इज द लोएस्ट लेवल का इनकम. इसमें हमने ओवर टाइम ही नहीं जोड़ा. अगर वो 8 घंटा काम करता है लेबर वाला तो 4 घंटा ओवर टाइम भी हर दिन कर लेता है. तो बेसिकली ही वर्क्स 12 आवर्स. तो सोचिए ओवर टाइम का 1.5 मिलता है उसको. जितना 16 अगर ओवर टाइम जो 4 घंटा करेगा या 3 घंटा करेगा या 2 घंटा करेगा, दैट विल बी पेड बाय 1.5 टाइम्स. सो दैट विल बी 24 आवर्स एन आवर के हिसाब से उसको मिलेगा. So that is the reason what he was saying कि जो मजदूर क्लास के लोग हैं और इंजीनियर जो हैं यहाँ पर, their salary almost is the same. और इसीलिए हर मोहल्ला में इंजीनियर भी मिलेगा आपको, और एवरेज जो मजदूर अपने यहाँ आते हैं उसका भी घर वही है, उसके पास भी गाड़ी घोड़ा है जैसे आपके पास है, उसके बच्चे वही स्कूल जा रहे हैं जो हमारे बच्चे जाते हैं. तो बेसिकली थोड़ा सा अंतर होता है लाइफ स्टाइल में, बहुत थोड़ा सा. लाइक उसकी 100,000 इनकम है तो आपके एज ए इंजीनियर आपकी $300,000 सालाना इनकम है. बट लाइफ स्टाइल इज बिकॉज इट इज ए कैपिटलिस्टिक सोसाइटी. यहाँ पर बैलेंस जो है टैक्स के हिसाब से किया जाता है. लेकिन इंडिया में और कम्युनिस्ट कंट्री में क्या है, वो फ्री में देने लग जाते हैं सब सारा सामान. तुमको फ्री घर,
जैसे अपने यहाँ पॉलिटिशियन फ्री घर मिला हुआ है, हाँ, उसी तरह जो है आपको एमएलए एमपी को फ्री घर मिला हुआ है। अब उतना ही नहीं, अब तो गाँव-गाँव में इलेक्शन के टाइम में लोग फ्री बाँटने लग गए हैं। बीजेपी ने नया ही शुरू किया है। हर इलेक्शन से पहले थोड़ा फ्री पैसा बाँट देता है। लोग 10,000 रुपया के लिए बिक जाते हैं, अपना वोट बेच देते हैं। ये यहाँ नहीं चलता है। ये सोशलिज्म है और उसके चलते देश खोखला हो जा रहा है। अगर आप खेत बेच-बेच करके खाते रहिएगा और बाँटते रहिएगा, पूजा-पाठ, भोज-भात करते रहिएगा, तो आपका घर की हालत जो है, माली हालत कैसे सुधरेगी? नहीं सुधरेगी। वही अपने यहाँ हो रहा है देश में अभी, जो कर रहे हैं भारत में। लेकिन यूरोप में और अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं हो रहा है। जापान में, साउथ कोरिया में नहीं हो रहा है, इसलिए लोग रिच हो रहे हैं। हमारे यहाँ लोगों को ये एम्बिशन ही नहीं है कि हम लोग रिच बने। हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग गरीब हैं। गरीबी जो है हम लोगों के लिए समझो कि क्या बोलते हैं, मेडल की तरह है। ये मैंने सुना कि आजकल गाँव में मारपीट हो रही है कि हम बिलो पॉवर्टी लाइन अपने आप को साबित करवा दें। यहाँ पर जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको सब मिलता है यहाँ पर। सारा खाना-पीना का सब सुविधा मिलता है। लेकिन उनको लोग लज्जा की दृष्टि से देखता है। उनको खुद भी शर्मिंदगी होती है कि हम जो है ये फ्री उसको बोलते हैं फूड स्टाम्प बोलते हैं यहाँ पर। कि हम फूड स्टाम्प ले रहे हैं। तो उसका मतलब वो बेइज़्ज़ती समझी जाती है। 3-4% लोग लेते हैं वो, लेकिन जो फूड स्टाम्प लेते हैं, उनको ना तो कोई अच्छी निगाह से देखता है वो अपने को भी नहीं अच्छी निगाह से देखते हैं कि और उनकी उनकी भी कोशिश होती है कि जितना जल्दी हो सके हम फूड स्टाम्प से निकल के रेगुलर जॉब करने जाएँ। तो ये है कैपिटलिस्ट थिंकिंग। हमको भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा इंडिया में अगर हमको आगे बढ़ना है। हम गरीब क्यों ना हैं? व्हाई कांट वी डू समथिंग व्हिच से हम पैसा बना के अपना ज़िंदगी ठीक कर सकें, अपने बच्चों का ज़िंदगी ठीक कर सकें। तो ये माइंडसेट हमारे यहाँ जब तक नहीं आएगा, हम यही रहेंगे। पर कैपिटा इनकम देख लीजिए $2,000 है हमारे देश की पर कैपिटा इनकम। मतलब सोचिए कितनी शर्मनाक बात है कि हम लोग गाँव से आते हैं, गाँव के लोगों की हालत इतनी खराब है कि कहना मुश्किल है। अ तो अ, ये प्रॉब्लम है इसलिए अपने देश में माइंडसेट जो है जैसे हम लोग करते हैं ना साइंटिफिक माइंडसेट की बात इस मीटिंग में हम लोग करते हैं। वी आल्सो नीड टू डेवलप इकोनॉमिक्स माइंडसेट एंड वेयर हम लोगों का सोचना ये होना चाहिए कि हम लोग कमा के अपनी ज़िंदगी ठीक करेंगे और अपनी मेहनत के बल पर अपनी सब कुछ बढ़ाएँगे, अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाएँगे, अपने बच्चों का लाइफ बढ़ाएँगे। बैक टू यू गाइस। मलिक जी आप चुप हैं, कुछ बोलिए। नहीं, आप लोग ठीक ही कह रहे हैं। तो हिमांशु जी बता रहे थे कि कनाडा और इंडिया का डिफरेंस बताया। हिमांशु जी, यू वांट टू कंटिन्यू दैट? लगता है वो कहीं और चले गए। अच्छा जी। मैं कह रहा था कि मैं दोनों जगह रह चुका हूँ। सॉरी, मैं म्यूट था, मुझे ध्यान नहीं। तो मैं कह रहा था मैं दोनों जगह रह चुका हूँ। जब मैंने बताया बच्चों को कि यहाँ पे स्कूल में आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते, तो उनको लगा अरे तो बड़ा अच्छा। लेकिन मैं उसके साथ ये बता रहा था कि आप जहाँ हैं वहाँ का माहौल के हिसाब से चीजें की गई है, जो बड़ों ने पहले की है। और जब आपको इतने आसानी से समझ में आ रहा है बच्चों की तो बड़ा अच्छा है, वैसे बड़ों को भी समझ में आया था। लेकिन कैसा होता है कि यहाँ के पेरेंट्स को उतना गम नहीं, अच्छा बच्चा कुछ नहीं करेगा, अरे आवरली रेट भी कमाएगा ना, तो भी एक अच्छा लाइफस्टाइल यहाँ जी सकता है। इतना पैसा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अब भी हम लोग भी काफ़ी कमाते हैं, लेकिन एक भी काम वाली बाई नहीं है घर पे। एक भी कोई स्टाफ को हम हायर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी सैलरी भी उतनी ही देनी पड़ेगी ऑलमोस्ट जितना, ठीक है। और टैक्स भी यहाँ है, ठीक है। तो जैसा देश वैसा वेश होता है। लेकिन अब कुछ चीजें हैं बच्चों के लिए था, हम बड़ों के लिए नहीं। मतलब मैं से ये कहना चाहता कि इधर अपने पास 24 घंटा ही है बच्चों के पास, और 24 घंटा में 8 घंटा सोना है, 8 घंटा स्कूल जाना है, बचा हुआ 8 घंटा जो है उस 8 घंटे में इन चीजों पे फोकस ना करें कि जो चीजें उनके कंट्रोल में ना है। अब स्कूल का सिलेबस चेंज करना, ड्रेस कोड चेंज करना, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। आप इन पे फोकस ना करके उनके ऊपर फोकस कीजिए जो आपके कंट्रोल में है, जो आप कर सकते हैं। कल का दिन जब होगा ना तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। इन बच्चों को मैं वही बताना चाह रहा था कि ऐसा कोई चीज नहीं है जो परफेक्ट है। कनाडा में और भी चीजें हैं जो परफेक्ट नहीं है। कोई इंसान भिखारी के साथ मिलना नहीं चाहता, लेकिन हर इंसान स्टार के साथ मिलना चाहता है।
उस स्टार के पास भी 2 हाथ है, 2 पाँव है, 2 आंखें हैं, सेम ही है। और भिखारी के पास भी सेम ही है, 2 हाथ है, 2 पाँव है। ठीक है, ये चीजों को मैं थोड़ी देर पहले बच्चों को यही समझाता कि कॉमन इज नॉट सो कॉमन इन ए कॉमन पीपल। बहुत इजीली लोग बोलते हैं कॉमन सेंस, पर दुनिया इतनी भी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी तरह से इसको प्रेजेंट किया जाता है। इसको एकदम आम सिंपल के भाव में समझें, और ये जरूर समझ में आना चाहिए बच्चों को कि हमारा लिमिट क्या है और हम क्या कर सकते हैं। हम जाकर के बॉर्डर पे तो लड़ नहीं सकते, तो बॉर्डर के लड़ाई के ऊपर फोकस ना करें। तो अपनी एनर्जी को सही जगह अगर यूज करेंगे तो आपका कल भविष्य बहुत अच्छा होगा, और आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। अगर आदमी मतलब बच्चे अगर इस तरह से फोकस करे, तो आज अगर मुझसे ये बच्चे पूछेंगे सर आपको कुछ अगर चेंज करना हो तो क्या, तो मैं इसी चीज को चेंज करूंगा कि वो कल पे ना सोचे और जो हो गया उस पे ना सोचे, जो अभी का समय है उस पे सोचे कि वो क्या कर सकते हैं, और जो करने में जो सपोर्ट चाहिए उस पे फोकस करें। बाकी ये सारे फैक्टर्स, ये सब होता रहेगा, इन सबको साइड रख दीजिए, आपकी चिंता का चीज नहीं है। सब माता पिताजी के लिए, वो सोचेंगे 2 टाइम का खाना मिल रहा है, स्कूल जा पा रहे हैं, हाथ मुंह चल रहा है, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक पर ताली हो जाए इसके ऊपर। मानसी जी ने गीता का अध्याय, ये गीता कौन सा श्लोक है, जे अपना काम कीजिए, अब बाकी चीज की चिंता मत कीजिए। यही ये कह रहा है कि स्वधर्म जो है आपका क्या है। आप लोग विद्यार्थी हैं अभी, आप अपना कस के पढ़ाई कीजिए, खूब खेलिए कूदिए, पूरा नई नई जिज्ञासा लेकर के आइए इस मीटिंग में, सीखिए, सिखाइए दूसरों को। ये चीज है काम आपका। और उसके बाद आप सही ट्रैक पर हैं। आप लोगों ने, हम लोगों को ये मौका नहीं मिला था, हम लोगों को कोई मेंटर करने वाला नहीं था, समझाने वाला था कि आगे क्या करना है। आप लोग भाग्यवान हैं, आप लोग हमसे स्मार्टर हैं। आप लोग, कि आप लोगों ने वो रास्ता पकड़ लिया है। अब आप इस मीटिंग में आते रहेंगे, जो जो आप आगे पढ़ाई में जाएंगे, तो मान लीजिए आप मिडिल स्कूल से हाई स्कूल करेंगे, हाई स्कूल से कॉलेज करेंगे, यहाँ पर सबसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है। उसमें एक आपका अपना दिमाग लगेगा, दूसरा हम लोगों का भी दिमाग लगेगा, और उसके बाद आप सही डिसीजन लेते जाएंगे, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। आई एम श्योर जितने आप लोग आ रहे हैं इस क्लास में, यू ऑल विल बी सक्सेसफुल, मेरे को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम लोग उसी के लिए आपको तैयार कर रहे हैं कि आप लोग फ्यूचर में, हम लोग जैसे सक्सेसफुल लोग यहाँ पर अभी जो यहाँ पर जो हैं बैठे हुए, जो इस मीटिंग में एज ए मेंटर आ रहे हैं, आप भी उनके तरह करेंगे काम। तो हम लोगों की जो सोचने की, हम लोग जिस तरह से सोचते हैं, सेम वे वी आर आस्किंग यू टू थिंक। Malik, the way Malik is thinking, behaving, Ansu is doing, I am doing, or Rajiv ji is doing, you just think that way. That's all it is. You एक बार वो लाइन पकड़ा गया, वो थिंक, तो फिर you will be successful. अब बच्चों से भी पूछा जाए कुछ सवाल, उन लोगों को पूछना है। I think it's already quite a bit of time. Anybody has English? We are not talking physics. Normally, whole time we are talking about science. But we have to also live in the society. So it's very important that once in a while we talk about society. चलिए, अब किसी को क्वेश्चन नहीं है तो अब हम लोग भोजन के लिए चलें। तब क्लोज दिस सेशन। Yeah. Sir, All right. Yeah, I wish you all the best. All right. Thank Bye. you. Thank you. Bye.